I'm ready to cry more. It is so unfair. I'm already losing because of that Lewandowski thing. नहीं मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा बे यार कर ले भाई कर कर ले, ले यही कर ले यहाँ यही पे नहीं बच रहा है कर मिलेगा। ले सह लेंगे थोड़ा डेनो की विस्का डेनो में What do you want to do? Let's start with rapid fire या end में करें rapid fire? स्टार्ट करते हैं क्यों उस्मान भाई ये बिल्कुल बिल्कुल। हाय यू गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी इस वीडियो में हम बायर्न वर्सेस बार्सिलोना का प्रीव्यू तो करेंगे ही, पर साथ में हम रैपिड फायर भी करेंगे। साथ में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे जैसे कि इस 30 द न्यू यंग एज, और मे बी एक रात का थ्रिलिंग मैच चाहिए या टाइटल्स चाहिए, एंड ऑल्सो बायर्न वर्सेस बार्सिलोना का मैच के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। एंड नो व्हाट माय गेस्ट्स हैव टू talk about it, even though I don't need to introduce them here because तुमने तो देख ही लिया स्टार्टिंग में कौन आने वाला है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन बिलो, टू कमेंट बिलो कि तुमको किसके आंसर्स रैपिड फायर में ज़्यादा ऑनेस्ट लगे, ज़्यादा मज़ा आया। उनके लिए पक्का कमेंट करें बिकॉज वो जीतेंगे और जो हारेगा उनको पनिशमेंट मिलेगा। यू नो द ड्रिल, दैट्स हाउ इट गोज़। एंड आज हम रैपिड फायर से शुरू करने वाले हैं, तो अभी इसके बाद रैपिड फायर देख लीजिए। चलो आज हम रैपिड फायर से शुरू करने वाले हैं, तो आप दोनों में से कोई वॉलंटियर करने वाला है कि कौन पहले जाएगा? डेफिनेटली ज़िशान भाई। वाओ। चलो भाई लेट्स गेट ऑलराइट स्टार्ट। आर यू रेडी ज़िशान? शुरू करें? हाँ Perfect. 1, 2, 3, go. Your first question is 2 transfers that Barca is targeting in winter window. Adeyemi and Ferran Torres. All right. Second, best team in the world right now. Manchester City. Wow, really? Okay. Ah. Third question is bigger heartbreak because of injuries, Ansu Fati or Dembele? Fati, obviously. All right. Fourth question is if Barca qualifies in this like in next round for knockout stage, which team do you not want to face? Is it Chelsea, Liverpool. Liverpool or United? Said it All before right. you give the option. All right. So the last question is Spain or Germany? Who can go Spain. farthest in World Cup? Oh, okay. Spain. Spain. Ah, yeah, Spain. Spain can go farthest in World Cup, you think? Yeah. Perfect. रैपिड Okay. फायर था तो मैं And- ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज्यादा सोचूंगा नहीं, स्पेन मैंने बोल दिया था। Yeah, I yeah, can yeah, yeah. see Perfect, perfect. वो अंडरस्टैंडिंग है। Let's go to Usman Bhai. So Usman Bhai, Ah, your time जी। starts now. 3, 2, 1. Let's go. 2 players that you wish that Barca signs in this winter window. Ferran Torres and Rudiger slash Lisandro Martinez. All right. So best team in Syria for you. Inter Milan. Inter. All right. So third question is biggest disappointment losing from Liverpool, from Roma, or from Bayern? Oh, Liverpool. Definitely Liverpool. Okay. All वो right. जीता हुआ था। So fourth. 100%. All right. So fourth question is Lewandowski not winning Ballon d'Or, robbed or not? Not. Okay. I must So explain. People will we kill can me. do that later. उसको मैं यार We'll मैंने do that डर लगा later. लॉट यार। Yes, No, definitely. we'll do that later. We'll do that later. The last question is Portugal or Italy? Who has better chances to qualify in the playoff stage? Italy. Italy. All right. So that is it. So guys, whoever you think कि जिसके आंसर ज़्यादा ऑनेस्ट थे, बढ़िया थे, कमेंट करना, और दूसरे वाले को पनिशमेंट डेफिनेटली मिलेगा, जो कि जो भी विनर होगा वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। वो तो हम चलो उसके लिए तो टाइम है अभी। We'll see whenever that happens. So I'll contact you guys again. So I think we should get into the video and talk about Bayern versus Barcelona. Are you guys ready? It is so unfair. I'm already losing because of that Lewandowski thing. No, नहीं नहीं Usman, उस्मान if you भाई want to explain. आपको सपोर्ट मेसी फैंस का आपको प्यार मिलेगा, मेरे तरफ से मिलेगा, मैं आपको जिताता हूँ, मेरे तरफ से उस्मान भाई विनर है। पनिशमेंट दे दो So मुझे। if you want to explain why not robbed, so we can give 2 minutes to that as well. सिंपल, मेरे ख्याल में दोनों डिजर्विंग थे, मेसी और लेवेंडोस्की। दोनों के पास, दोनों ने, मैं काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, जैसे शान भाई ने भी कहा, दोनों के स्टैट्स ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम थे, थोड़े बहुत ज्यादा थे लेवेंडोस्की के। मेसी वन कोपा अमेरिका, फिर उसके बाद कोपा डेल रे भी था। लेवेंडोस्की ने बुंडेसलीगा जीती, गर्ड मुलर का रिकॉर्ड तोड़ा, दैट्स अ ह्यूज थिंग।
तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे और मैं काफी दफा ये कह चुका हूँ, इवन 3-4 महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी जीता, आई वुड बी वेरी हैप्पी। और मेसी ने जीता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेसी डिजर्विंग नहीं था, और लेवेंडोस्की जीता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना था कि लेवेंडोस्की डिजर्विंग नहीं है। एग्जैक्टली वैसे who do you support, मतलब दोनों में से who आपका फेवरेट कौन है? You ask उस्मान भाई, वो कहेंगे नहीं लियो मेसी डिजर्विंग था, ठीक है, बट उसको भी दे दिया, मतलब मिल जाता तो ठीक होता। मेरा भी चॉइस मेसी था, ओके फाइन, पीपल नो कि मुझे मेसी ज्यादा पसंद है, एंड आई कैन बैक इट अप विद द स्टैट्स एंड एवरीथिंग इफ पीपल वुड लाइक टू आर्ग्यू विद मी ओवर हियर, जो कि प्लीज मत करना, मैं थक चुका हूं। व्हाट इज अबाउट यू? अभी मेरे को गाली पड़ने वाली है बहुत ज्यादा if I answer this one because I do not get into it, but I will answer this. I will answer this. I think that Messi deserved it. लेवेंडोस्की डिजर्व्ड इट एज वेल, बट शायद उसको पिछले साल का दे देना चाहिए था, या तो दोनों सालों का कंबाइन करके इनको कुछ बनाना चाहिए था, बट सिंस दे डिडंट डू दैट, तो मुझे लगता है कि जो भी मेसी कोपा अमेरिका ये सब जो व्हाटएवर ही हैज डन नाउ, आई थिंक ही क्लियरली डिजर्व्ड इट। लेकिन लेवेंडोस्की का पिछले साल का तो बनता है, अगर सारे लीग्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो क्यों नहीं? इट्स अ सबसे बड़ा ट्रॉफी जो एक फुटबॉल प्लेयर अपने करियर में एक्सपेक्ट करता है कि उसको मिले। तुमने उसको एमी कैंसिल कर दिया जब सारे लीग्स हुए थे, तो आई थिंक फ्रांस का लीग नहीं हुआ था, वो शायद बीच में रुक गया था, बट वाज इट कंप्लीटेड? या इट वाज कैंसिल्ड, राइट? तो आई थिंक उसकी वजह से तो प्रेफरेंस अगर उसी को मिल रहा है, आई नो वहां कंडक्ट होता है, बट थोड़ा तो अनफेयर था उस चीज के हिसाब से। पिछले 2 सालों में लेवेंडोस्की से बेटर प्लेयर नहीं मिला है, क्योंकि 2 साल अगर आप कंपेयर करोगे ना, दैट गाय हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, एंड हो सकता है मेसी ने बेटर खेला हो 2021, हो सकता है साला ने स्टार्ट किया है, बेंजेमा ने स्टार्ट किया है ये वाला सीजन ज्यादा बेटर, बट इवन स्टिल राइट नाउ यू कैन सी कि लेवेंडोस्की के क्लोज 2 सालों में ही हैज स्कोर्ड 112 13 गोल्स इन 2 इयर्स, तो भाई कोई नहीं है। इसमें आपने क्रिटिसाइज, मैं काफी दफा कह चुका हूँ लास्ट कमेंट के, क्रिटिसाइज करना है तो आप फ्रांस फुटबॉल को करें। मतलब ये क्या मजाक है कि आप उसको वो दे रहे हो स्ट्राइकर ऑफ द ईयर। आई मीन इट्स डिसरिस्पेक्ट एक्चुअली, जो कि मैं काफी दफा कह चुका हूँ, वाकई डिसरिस्पेक्ट है। और भाई आप उसको दे दो पिछला वाला बैलन डोर, तो लोग ना मेसी इस रीजन के ऊपर ना मेसी को हेट कर रहे हैं। तो मैं लोगों को कह रहा हूँ कि यार मेसी तो खुद कह रहा है कि पिछले साल का उसको दो, तो आपने अगर किसी को हेट करना है तो हेट फ्रांस फुटबॉल इन दिस। ये तो चलो डिबेट चलता ही रहेगा, दिस इज नेवर गोइंग टू एंड। कल अगर लेवेंडोस्की को मिल जाता तो मेसी के लिए भी लेवेंडोस्की को हेट मिलना था कि मेसी डिजर्व्ड इट, सो इट्स नेवर गोइंग टू लाइक एंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज ज़ीशान, आई वांट टू आस्क यू कि ऐसा है कि बार्सिलोना हैज गॉन थ्रू अ लॉट, चाहे वो मैनेजरियल चेंज लगा लो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लगा लो, मेसी लीविंग बार्सिलोना, या फिर अभी के टाइम पे जो इतने इंजरीज चल रहे हैं बार्सिलोना के, व्हाट डू यू थिंक, यू नो, अभी वाइब कैसा है गोइंग इनटू दिस बायर्न वर्सेस बार्सिलोना मैच? और ऊपर से ये भी चीज है दैट यू नो थॉमस मुलर ने बोला है अबाउट द जर्मन प्लेयर्स एंड स्टफ, तो व्हाट डू यू थिंक द वाइब इज लाइक गोइंग इनटू द मैच? We are past that time जहाँ पे we go off with that mentality कि we are not capable of a win, because we saw that under Kike Setien, we saw that under Koeman as well. Simple games, away games में, even under Ernesto Valverde जो away games होते थे, वहाँ पे जब हम जाते थे अजीब सी एक negative vibe होती थी that we might end up losing that game. Even जब हम home पे मैच खेल रहे होते थे, we were 1-0 or 2-0 up, 70 मिनट के बाद से यूज देख सकते थे अजीब सी एक vibe आती थी जहाँ पे पूरा कैंप नो ठंडा पड़ जाता था, and वहाँ पे opponents अटैक करना स्टार्ट कर देते थे, and we will used to lose those games. यही सेम सीन हुआ था उस 2018 की टाइटल बैटल में, जब रियल मैड्रिड ने केम बैक फ्रॉम दैट, 19 की थी टाइटल बैटल, मैड्रिड, हमारे पास काफी अच्छा पॉइंट गैप था, मैड्रिड केम बैक एंड वन ऑल ऑफ द लास्ट 9 games and Barcelona lost it. So it was the same thing that was happening, that was absolutely everything was related to that mentality. आज की गेम में, about this game, we know कि we are not the favorite, but it's not like we're not gonna go out and try. Xavi is over here. I'm not saying कि Xavi is a huge tactical mastermind, but he was a phenomenal player. And जब तक Xavi था टीम में, we never thought we cannot win a game. And Xavi came on and said कि Barcelona पे, whenever you are a manager or you are a player, you have to go out in a game wanting to win that game. So that is the mentality. And I feel कि Barcelona के player right now are better than जो वो वाइब होती थी पहले, उससे लेके अभी काफी बेटर है. Yes, probably they might be thinking कि यार डर लग रहा है, but I think they have to take it casual. They shouldn't let it affect their mind, and just go off and give their best in the game. Absolutely right. And what do you think about it, उस्मान भाई? What do you think कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो बार्सिलोना के लिए है इस मैच में जाने के लिए, वो क्या होगा?
सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा जो कि हमें काफी बड़े मैचेस में देखने को मिला अंडर कोमन, जो कि होपफुली ना देखने को मिले, क्योंकि इट्स अ फर्स्ट बिग गेम। आई मीन वी हैव टू बी ऑनेस्ट, ये सबसे बड़ा मतलब गेम जो है चावी के अंडर ये यही है बायर्न म्यूनिख वाला। तो कोमन के अंडर हमें हमेशा ये देखने को मिलता था कि बड़े मैचेस में इट वाज लाइक एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी है टू डिफेंड नॉट टू लीक गोल्स, जिसमें हम भूल जाते हैं कि वी नीड टू अटैक, वी नीड टू कंट्रोल द मिडफील्ड, जो कि बारसा की फिलॉसफी यही है कि यू हैव टू बी ऑन द बॉल, राइट? यू ट्राई टू रिकवर द बॉल इन द ऑपोजिशन हाफ, व्हिच विल बी वेरी डिफिकल्ट अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, क्योंकि एक कंप्लीट टीम है। लेकिन आपको एटलीस्ट ट्राई तो करो आप, ठीक है? अब बेनफिका का गेम देखो जो हम 3-0 आए, वी वर नॉट इवन ट्राइंग अगेंस्ट बेनफिका, वी वर स्केयर्ड अवे एट बेनफिका। और बायर्न म्यूनिख में तो होम के ऊपर वी वर नॉट इन दैट गेम आल्सो। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विन और लूज, ऑब्वियसली वुड वांट टू विन, लेकिन रियलिस्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम आई कैन गो फॉर इन दिस मैच इज अ ड्रॉ। लेकिन मेन चीज जो देखने को मिलनी चाहिए वो फाइट देखने को मिलनी चाहिए। वी वन अगेंस्ट विलारियल, मतलब पहला मेरे ख्याल में अवे विन थी इस सीजन। तो थोड़ा सा आपको एक चेंज नजर आया कि यार उन्होंने हम 1-1 हो गए थे, बट वी स्टिल ट्राइड कि हम उसके अंदर से 3 पॉइंट्स निकाल सके और वी वन इट 3-1। तो ये एक थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज देखने को मिली है, और मुझे चावी से अभी तक ये चीज देखने को मिली है कि ही इज बेसिकली ट्राइंग, बारसा बी का प्लेयर हो, सी का प्लेयर हो, डी का प्लेयर हो, बट अगर उसको खिलाना है, जो इलियास और अब्दे के केस में दिखा, he said कि मुझे वाइड प्लेयर चाहिए, आई विल प्ले दैट। मेरे सिस्टम के अंदर वो प्लेयर इंपॉर्टेंट है। अगर ये गोमन होता तो आपको कोटिन्यो ही दिख रहा होता पिच के ऊपर, आपको वही प्लेयर दिख रहे होते जो हाँ सर्जियो रोबर्टो जो एक्सपेक्टेड थे, राइट के ऊपर आपको सर्जियो रोबर्टो दिख रहा होता। थैंक यू जिशान भाई। तो ये चीज थोड़ी सी चेंज हुई है, ऑब्वियसली बहुत अर्ली है कहना। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, विंटर के अंदर हम क्या लेंगे क्या नहीं वो एक अलग एक कहानी है। गोइंग इनटू दिस गेम हमारे पास इंजरीज हैं, फाटी आपके पास प्लेयर अवेलेबल नहीं है, फिनिशिंग बारसा आर एबल टू क्रिएट, वो फेजेस के अंदर अच्छा खेल रहे हैं, थ्रू आउट द 90 मिनट्स बेटर खेल रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, दे आर रिकवरिंग द बॉल, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, पर चांसेस ले नहीं रहे क्योंकि हमारे पास प्लेयर नहीं है। डिपे स्ट्रगल कर रहा है इन फ्रंट ऑफ गोल, फाटी इंजर्ड है, उसके अलावा डेम्बेले अभी शायद मैच पहला अपना स्टार्ट करेगा, ठीक है, बट यू कैन एक्सपेक्ट गुड रन्स, कैन ही फिनिश, विल हैव टू वेट एंड सी। तो ये प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मिडफील्डर नहीं है हमारे पास जो कि एट विल केविन डी ब्रुयने जैसा जो कि गोल स्कोर कर सके, रोना आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स बड़ी ज्यादा हैं, बट we have to be optimistic। और अगेन मैं एक और बात करूंगा, जिशान भाई थोड़ा सा फिर मूड खराब हो जाएगा जिशान भाई का। मैं भी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि जिशान भाई के साथ बात करते हुए कि आई एम मोर ऑप्टिमिस्टिक कि बेनफिका डायनामो कीव ड्रॉ निकालेगी रादर देन वी विनिंग अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। तो डायनामो कीव विस्का डायनामो जर्सी यहाँ लगवाया तो मैं डायनामो कीव की होम अवे एंड थर्ड किट। मैंने तो जिशान भाई को कह दिया आपने लाइव स्ट्रीम कर रही है, हाफ शर्ट बारसा की और हाफ शर्ट डायनामो की, इस तरह की शर्ट जल्दी से प्रिंट आउट करवाएं। नहीं एब्सोल्युटली ये तो है, पर ये बात तो एकदम सही है कि एक बहुत बड़ी चीज है मेंटालिटी इन द गेम। तो आई एम सॉरी फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, बट लिवरपूल वर्सेस बार्सिलोना जो मैच हुआ था एनफील्ड पे, अभी इट वाज ऑल अबाउट मेंटालिटी। वी डिड नॉट हैव साला, वी डिड नॉट हैव फर्मिनो, द सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद बार्सिलोना राइट नाउ। अगर बोले आंसू फाटी नहीं है, देन सो मेनी इंजरी प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी हैं। तो वो जो एक मेंटालिटी है, दैट मैटर्स द मोस्ट। इट डजंट मैटर हु यू आर फेसिंग, बट यू शुड नो दैट हु यू आर। तो गोइंग इनटू द मैच अगर वो चीज रखें बिना डरे, बेस्ट थिंग इज आई थिंक कि फैंस नहीं है अभी। तो डू यू थिंक कि फैंस ना होना वहां पे बार्सिलोना की परफॉर्मेंस को थोड़ा बेटर करेगा या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? हु वांट्स टू टेक दिस फर्स्ट? Last time we got smashed 8-2 when we played against Bayern in an empty stadium. So fans or no fans doesn't really care. Bayern Munich is ruthless. One of the teams that take no bullshit. That is Bayern Munich. उनको फर्क नहीं पड़ता सामने कौन, वो कहेंगे हमारा गेम अटैक करना, will go out and score 2 goals. 2 गोल 30 मिनट बच रहे हैं, 2 और मारो. Till God has scored 2 more and कहेंगे 5 minutes और added on, let's go and push out for 1 more goal and they will come off as 5-0 winners, because that's their winning mentality, that's ruthlessness, and that is what is required at Barcelona. Ki they should capitalize on their talent that they have got. Are we asking too much out of them? Yes, because have we got the players who can score those goals? No, we don't. जैसे उस्मान भाई ने बताया, हमारे पास players ही नहीं है just go up top and score, and we cannot expect those things जो कि
मैड्रिड की मिडफील्ड करती है टू यू नो टेक शॉट्स स्कोर, जो हम्म, सिटी की मिडफील्ड करती है, जो लिवरपूल की मिडफील्ड करती है, बाय द वे Barcelona ki midfield is much more stagnant and they are much more integrated into passing, into linking up the play. Although Xavi ke under we have seen a few changes that they are arriving more in the box. De Jong is played with much more freedom. Last time he had a very good season. He scored a lot of goals. तो उसके अराइवल्स, निको गोंजालेस के अराइवल्स, गावी का वो उस लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे खेलना, कंबाइन करना, हम्म, तो वी सी व्हाट बार्सिलोना इज ट्राइंग टू डू. वी सी कि ये एक काइंड ऑफ एक वेरी स्टेप वन है इनटू अ वेरी गुड हम्म, फ्यूचर, जहां पे आप बहुत बढ़िया गेम प्ले देख सकते हो विद बार्सिलोना, से एक्सपेक्ट कर सकते हो विद द हम्म. राइट प्लेयर्स ओवर देयर. तो दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू कि नेगेटिव पॉइंट्स तो हमको बहुत दिख ही जाते हैं, बट सिंस अभी जावी आया है, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि कल ही एकदम चेंज हो जाएगा बार्सिलोना का टीम एंड यू विल गेट द रिजल्ट इंस्टेंटली. ये तो नहीं होता है, थोड़ा टाइम दो. क्लॉप टुक टाइम डूइंग वेल. ओके, टुकल को नहीं इंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन में, बट देन आई फील दैट फ्रैंक लैम्पार्ड ऑलरेडी गॉट सच गुड प्लेयर्स इन द टीम एब्सोल्युटली एंड यही बात है. व्हाट दैट टुकल हैड टू डू वाज उनको अच्छे मैनेजर की जरूरत थी जो उन प्लेयर्स को यूज कर पाए एंड दैट्स व्हाट टुकल डिड. ही इज अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर. बट अभी जावी की बात करते हैं कि लाइक आई सेड द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. उस्मान भाई, आई वांट टू आस्क यू व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना कि अभी वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. व्हाट आर द पॉजिटिव्स दैट यू आर सीइंग इन दिस बार्सिलोना टीम? लेट्स नॉट गेट इनटू एनी नेगेटिव एंड इफ्स एंड बट्स हियर, but just the positives that you have been noticing since Xavi has come on the team. Xavi has brought discipline. He's trying. मैं ये नहीं कहता कि आ चुका हुआ. Obviously, it will take so much time. Ernesto Valverde के टेन्योर से there is no discipline at all, जो कि काफी दफा मैं कह भी चुका हूँ, और उसकी दफा वहां से ही चल रहा है ये प्रॉब्लम. तो फर्स्ट ही ट्राइड के वो डिसिप्लिन लेके आए, ठीक है, और वो सारे वो जो रूल्स हैं, उसके बाद काफी डिस्कशन उसके ऊपर हुई थी, Xavi 10 रूल्स एंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा है. दूसरी जो आपने भी डिस्कशन की कि मेंटालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब आपकी मेंटालिटी ठीक नहीं है तो आप मैचेस हारेंगे. इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू लूज, यू विल डेफिनेटली लूज. देयर इज नो पॉइंट कि आप जीत सकते हैं. तो चावी क्या करने की, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, और जो जो बिल्कुल भी कॉमन के, मतलब आप क्या स्टेटमेंट देखते थे, दिस इज व्हाट वी टेस्ट, दिस इज व्हाट वी हैव. तो इस तरह की स्टेटमेंट आई एम गिविंग यू 100%. आई मीन आई एम सेइंग दिस 100%. Knowing Xavi, he will never give you such statements, ठीक है. वो he will always say that we can win that game. और उसके बाद हार जीत. अगेन क्लॉप की एग्जांपल बहुत अच्छी है, मैं अक्सर देता हूँ ये, कि यार आपको ना प्रोग्रेस दिखनी चाहिए. क्लॉप क्या, लिवरपूल स्ट्रगल कर रही थी, दे वर स्ट्रगलिंग टू मेक टॉप 4, लेकिन वो क्या होते थे कि वो एक स्ट्रक्चर दिखता था, एक अटैकिंग थ्रेट दिखती थी, और ऐसा दिखता था ये आइडेंटिटी है टीम के अंदर कि ये क्लॉप की टीम है. बड़ी बड़ी टीम्स को भी हरा रही थी, छोटी टीम से हार जाती थी, लेकिन बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रही थी. तो पोटेंशियल दिख रहा था, एक पैटर्न दिख रहा था. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि अभी दिख रहा है, ठीक है. अभी छोटा सा टेन्योर है, इसके अंदर दिख रहा है चावी के अंदर. तो ये पॉजिटिव्स हैं. और अगेन मैंने वो सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी, जो कि मैंने देखी चावी के अंदर, कि अब्दे इलियास, बासा बी प्लेयर्स कंटेंशन के अंदर नहीं थे. उसने कहा भाई मुझे उनको ही खिलाना है, मुझे वाइट प्लेयर्स चाहिए, मैं इन्हीं को खिलाऊंगा, ठीक है. तो दैट्स द पॉजिटिव जो मुझे दिखे चावी के अंदर. And do you want to add anything to it, Zishan? नहीं, absolutely. Usman bhai absolutely nailed it with the things that he told. उसके अलावा दे या ऑन पिच की अगर चीजों की मैं बात करूं, द बिट ऑफ टैक्टिकल पार्ट, दैट वी आर मच मोर अर्जेंट इन पासिंग. हम और ज्यादा डायरेक्ट हो गए हैं. देयर इज नो मोर साइडवेज पासिंग, बैकवेज पासिंग. हम और ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमारे प्लेयर्स और ज्यादा नैरो एंड क्लोज खेलने लगे हैं, बट वी नो हाउ टू प्रोग्रेस विद द बॉल. तो वी ट्राई टू प्ले मोर ऑफ द गेम इन द ओपोनेंट हाफ. उनके हाफ में हम खेलना चाहते हैं, उनके हाफ में बॉल विन करना चाहते हैं, उनके हाफ में हम ओवरलैप्स एंड अंडरलैप्स करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन हैव न्यूमेरिकल सुपीरियरिटीज. या भी का एक सोल मकसद है, that is to always have that one man free in on that pitch, so that we can find him, we can pass to him, and then वहां से हम अटैक बना सकते हैं. So उसके लिए pass the ball. जी हाँ, या take the ball, pass the ball, of course, that's very true. And वही मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था take the ball, pass the ball की, तो उसमें Xavi was saying कि बार्सिलोना की एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ डीएनए है. You either play the Barca way or you don't, right? तो it's that kind of a DNA, जो कि it's people confuse it with that tiki taka style. It's not just tiki taka, and you cannot go on and play tiki taka in modern game. You cannot. It has been beaten now. आप वो चीज से अप्रोच नहीं कर सकते. You have to adapt, and the reason why Barcelona is failing to
is struggling is because everyone wants to see that tiki taka जो कि नहीं possible है, नहीं ला सकते आप. You have to adapt to it. Hmm. City ने कितने खूबसूरती से adapt किया, and that's the reason why I love the way they play. Even एक totally different style है जो gegenpressing जो लिवरपूल खेलती है, that I also love. तो whatever style you choose, you have to nail it, and that's the reason why Ralph Rangnick is very much vocal in the when talking about the manager. He said कि Diego Simeone का एक style है, he has nailed it, and वो खिलाता है, and the team wins it Hmm. because when you see that team, आपको पता चलता है कि okay ठीक है, that is a Diego Simeone side, and this is a Pep Guardiola style. This is to kill style of football. Everyone have their mojo. Everyone have Identity. their It's identity. identity. Yeah. Absolutely. Thank you so much. So Hmm. Barcelona need to find that, but they don't have to go a step back, finding their lost identity of that tiki taka. They have to adapt to it. And जो मैंने पिछले 3 matches में देखे हैं, I can believe, I have that faith कि the way in which Barcelona is moving is very, very good, very bright. With the players we have got, हमारे पास Pedri है, the Copa Trophy winner, we have Gavi. Hmm. These guys, these are gems. मतलब लोग पागल हैं to have these kinds of players in the team, and हमारे पास वो काम वो 17-18 साल के लड़के करते रहे, and they expect us to perform every match day with these bunch of kids. Let's not rush. Let's not just say कि नहीं Barca are finished as well. Good things take time, and let's give time to Xavi to actually build this team. If we're talking about Barca and Bayern का मैच अभी तो what I want to ask you is कि डायनेमो कीव के अगेंस्ट मैच था एंड ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख ने क्वालिफाई कर लिया है ग्रुप स्टेज, लेकिन तब भी उन्होंने अपना प्रॉपर टीम खिलाया है. ये नहीं था कि उसमें भी उन्होंने कोई और प्लेयर्स यूज करे हैं, लेवेंडोस्की इज रेस्टिंग कि चलो ठीक है 1-2 मैच में बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है. तो प्रॉपर टीम उसमें भी था एंड आई थिंक वी कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि इस गेम में बायर्न म्यूनिख पूरा प्रॉपर टीम नहीं खिलाएगा. स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 वो चुनेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है एंड प्ले. बट एक जो एडवांटेज आई थिंक बार्सिलोना हैज इज अगर डॉर्टमंड वर्सेस अभी बायर्न म्यूनिख का मैच हुआ था तो उसमें क्लियर कुछ डिफेंसिव एरर्स दिख रहे थे बायर्न म्यूनिख के, तो जिस पे अगर बार्सिलोना पूरा पाउंड कर पाए तो आई थिंक दैट देयर इज अ चांस फॉर बार्सिलोना टू एक्चुअली विन द मैच. कंसीड करेंगे हो सकता है बट दे कैन एक्चुअली विन द मैच इफ दे हैव द मेंटालिटी. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? बताना मुश्किल है लेकिन डेफिनेटली वीक पॉइंट्स दिखे हमें. और मैं ये कहूंगा कि बायर्न के अगेंस्ट थोड़ी बहुत सक्सेसफुल जो रिसेंटली टीम्स रही हैं ना, वो वही रही हैं जिन्होंने अटैक किया है, जिन्होंने मतलब दे ट्राई टू प्ले व्हाट दे वांट टू प्ले, राइट. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फ्रॉम बार्सा टू कंटिन्यू डूइंग दैट, जो कि मैं काफी दफा कह चुका हूँ. कोमन के अंडर बिल्कुल हम एक स्विच मतलब बिल्कुल गियर स्विच हो जाता था. तो दिस इज व्हाट आई वांट कि बार्सा बिल्कुल बड़े गेम्स में तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई हमें डिफेंड ही करना है, वी कांट कम्पीट विद दीस टीम्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर आर मतलब जो हांसी फ्लिक की टीम थी दैट वाज अ मोर कंप्लीट टीम. यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं. पावर्ड एक वीक लिंक है राइट साइड के ऊपर, फिर किमिक अवेलेबल नहीं होगा तो टोलिसो होगा, वो एक वीक लिंक है. मिडफील्ड के अंदर आप कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि यार कि आप मिडफील्ड के अंदर निको खिलाएं, डियोंग खिलाएं, गावी खिलाएं और बुस्केट्स चारों को खिलाएं, क्योंकि वहां पे वो दे विल प्ले विद टॉप 4 अप फ्रंट, मुलर, लेवेंडोस्की राइट साइड के ऊपर, कोमन लेफ्ट साइड के ऊपर साने. तो आप मिडफील्ड के अंदर आप यू कैन ट्राई टू डोमिनेट और आप वहां पे आप गेम मैनेज कर सकते हैं. वहां पे आप क्या आप बॉल कंट्रोल रख सकते हैं, और जितना आपके पास बॉल कंट्रोल होगा फॉरगेट अबाउट इट कि अगर आप लो ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, यू ट्राई टू डिफेंड दिस बायर्न टीम, तो ये थ्रू बॉल्स भी निकाल सकते हैं, दे कैन बीट यू ऑन दैट आल्सो. और ये एरियली भी लेवेंडोस्की और थॉमस मुलर अप फ्रंट एरियली भी आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो फॉरगेट अबाउट दैट लो ब्लॉक और डिफेंड करना. Yes, you have to be resolute in the defense also. You have to be very good. लेकिन मेन फोकस यही होना चाहिए, फिलॉसफी सेम होनी चाहिए जो चावी काफी दफा डिस्कशन कर चुका है. Try to be on the ball, try your best to be on the ball and recover the ball in the opposition half, not in your half. जब पीछे भाग रहे होंगे ना पेस के साथ साने और कोमन, लेवेंडोस्की अप फ्रंट, तो फिर डिफेंड नहीं आप कर सकते, ठीक है. फिर नहीं पीके और अराहो और डेस्ट डिफेंड कर सकते. You have to win. You have to make the foul in the opposition half. And क्या चला जाएगा, थोड़ा सा डर्टी खेलो यार, थोड़ा सा डर्टी खेलो, pull them down. टेक्निकल फाउल्स होते हैं. फैबिनो को देखो खूबसूरती से करता है. ओके हाय, हाँ, you might know इंडी की फैबिनो is very good in those टेक्निकल फाउल्स, and even फर्नांडिन्हो बहुत प्यार से करता था ये सारी चीजें.
तो we need someone जो कि थोड़ा सा naughty हो सकता है pitch पे. Come on, go Hmm. pull down their pants, man. Come on, कुछ तो करो. Disrupt their attacking Thiago moves. does that a lot. Thiago does that Thiago so does that. much in Yeah. Liverpool's team. Yeah. सॉरी टू कट यू, एक पॉइंट मैं ऑब्जर्व कर रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर राल्फ रैगनिक फर्स्ट गेम, उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से ज्यादा फाउल किए हैं. तो आपको इट्स टेक्निकल फाउल करने पड़ते हैं व्हेन यू आर ऑन द बॉल. तो आपको मेक श्योर करना है कि ऑपोजिशन हाफ के अंदर आप ब्रेक करो प्ले को. तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो तभी आप कर सकते हो व्हेन यू आर ऑन द बॉल, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी ऑन द बॉल. तो या लेट्स सी. बात मुश्किल आपको होगा. याद है बायर्न म्यूनिख. आपको याद है वो पता नहीं कौन सा टाइम था, लुइस एनरिके का टाइम था, लूचो का टाइम था, हम डायनामो कीव या किसी के अगेंस्ट खेलते, रशिया में गेम था, लाइक बट वो हमारी स्ट्रेटजी रही है पूरा थ्रू आउट द टाइम जब भी लूचो था. वी हैड दैट 6 सेकंड या 7 सेकंड बॉल विन रूल. यू लूज द बॉल, आपको बॉल 7 सेकंड में रिकवर करना है, एंड दैट्स व्हाट बारसा प्रीच्ड and that's what made us play like that 100%. MSN के टाइम में. and आपने देखा कि MSN थे still, these guys were working cohesively, these guys were pressing to win the ball back. ठीक है, फाइन, Xavi, Iniesta, Busquets, Rakitic all were there, but we used to work as a team. क्या वो टीम हमारी परफेक्ट थी? नहीं, टीम परफेक्ट नहीं थी हमारी. स्टिल वी गॉट वीकनेस. हमारे पास राइट बैक लेफ्ट बैक का इशू तो बना ही बना था. डिफेंस में भी स्टिल लॉन्गले पीके वही हरकत करते थे, तो टीटी भी तो स्टिल, बट वी यूज्ड टू वर्क एज अ टीम एंड वी यूज्ड टू गेट द विंस. तो वही सीन है. इवन यू लुक एट राइट नाउ द टीम ऑफ बार्सिलोना, एवरेज एज ऑफ बार्सिलोना इन दैट 82 वाज 30.4 31 इयर्स ओल्ड के अराउंड. अभी इट इज वेरी वेरी लो. बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, जो कि लोग भूल जाते हैं. लोगों को क्या सिर्फ रिजल्ट चाहिए, लोगों को सिर्फ गोल्स चाहिए. यू डू नॉट सी हाउ अ क्लब इज मूविंग टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन. दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द फ्यूचर, एंड दैट्स हाउ विजनरीज वर्क. तो यहाँ पे probably Xavi is kind of wanting to be, make this something into a beautiful thing. So we'll want to trust him, even we get a thumping against Bayern Munich. Then कोई बात नहीं, that inevitable है. We are not at the level. कौन सी नई बात है? कौन सी नई बात है? वो रखा है, एक बार सह लेंगे थोड़ा. नहीं डेफिनेटली मैं यही कहना लगा था कि आई एग्री कि नियर फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट आफ्टर 1 year, after 2 years, ये players जो हैं you have the future, right? लामासी, आंसू फाटी, फिर can get fit, फिर काफी जैसे explain किया, निको, ठीक है, राहो, you have the future, और you have to be smart in the transfer market. ठीक है, जो हमने गलतियां की हैं अभी पिछले 3-4 साल में वो नहीं करनी, बिकॉज सारी टीमें पैसा लगा रही हैं, लेकिन सक्सेसफुल वो टीम है आज पिछले 10 साल के अंदर सारी बड़ी टीम पैसा लगा रही है, 1 बिलियन से ज्यादा लगाया ज्यादातर टीम्स है, लेकिन सक्सेसफुल वही हैं जो कि अच्छी रिक्रूटमेंट कर रही हैं. तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग मनी, इट्स अबाउट स्पेंडिंग मनी इन द राइट डायरेक्शन. लाइक अभी इस चीज पे बात चल रहा था कि कितना यंग टीम है बार्सिलोना का, पर अगर इफ आई कैन ब्रिंग क्लॉप हियर, तो अकॉर्डिंग टू हिम 30 is the new young age in football, because that is what he has been saying to the players, that what, क्योंकि क्लॉप को हमेशा इंटरव्यूज में पूछा जाता था कि प्लेयर्स एज हो रहे हैं, प्लेयर्स का बहुत एज बढ़ रहा है. So what Klopp said, that he has told the players that this is the time of your life where you have to perform, where you will perform, because you have the experience and you will know what to do in the big games, and that will make a huge change, and this is the time that you can actually break records. So that is what he has told the players, because even I used to think that a young and vibrant team is what is required. But don't you think that even the players age, see Ronaldo playing at 37, then there is Ibrahimovic, then there's so many players already, Oliver Giroud, everybody like going for that, James Milner, 35 I think he is. So don't you think that the agility of the players is increasing now and even decreasing? So like in Barcelona, 17-16 years old players क्या काम कर रहे हैं, वैसे ही 37-38 years old के players बहुत अच्छा कर रहे हैं. This is a way of motivation. When you'll have 30-year-old in your team, you won't say that that you are not required. You will say every single time कि भाई लोग चलो तुम 30 के हो तो क्या हुआ, let's go and defeat them. This is a way of Klopp management. If he had Exactly. 24-25-year-old player on the pitch, he would have said that same thing to them. By 24 is a peak time, 25 is a peak time of a career, 30 is not the peak है ही time. नहीं, exactly. जब है There नहीं is तो no क्या way that करोगे? you can, yeah. Look at how he was trying to incorporate that guy, youngster आपका जिसको चोट लग गई, Elliot. Look at how, Elliott. yeah, हार्वी एलियट को वो देखो कैसे इनकॉर्पोरेट करना चाहता है. he out and out थोड़ा सा with winger kind of role पे खेलता है, but he was turning himself into an 8 role.
तो तुम देख रहे हो कि इट्स नॉट लाइक कि उसके पास नाबी केटा एज वेल है, ही इज आल्सो ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ नाबी केटा, बिकॉज़ नाबी केटा अच्छे से नहीं खेल पा रहा था कभी-कभी, बट व्हेन यू सी हिम बैक व्हेन ही प्लेज ही इज हैविंग अ डिसेंट गेम. थियागो एज वेल, ठीक है, probably everyone in the team is nearing their 30, ठीक है, but still they are working like that because Klopp wants them to work like that and he gives them the Exactly. confidence कि भाई तुम हो, you would play. आपके पास इब्राहिमा कोनाटे है, a very good young defender, but वहाँ पे माटिप खेल रहा है. तो it's like कि Klopp likes to extract the best of the players, you know, उनको वो motivation देना कि that was the only thing that made them win against Barcelona. Not having Salah, not having Firmino, Henderson coming off with that injury, उसको चोट लगी थी. I think he was taken off as well very Yeah. early. हाँ, Gini तो Wijnaldum came. Gini Wijnaldum came on, yeah, and he comes Yeah. on and scores 2 goals. So come on, that's pure mentality. So even Absolutely. yeah, so you have to work with what you got. Exactly. Eh, That is true. if I comment on this age thing, if you compare Liverpool with Barcelona, ठीक है, जहाँ पे हम बार्सिलोना को क्रिटिसाइज करते थे, बहुत डिफरेंस है. लिवरपूल के Yeah. अंदर 30 है, 29, 28, 30, इट्स ओके. ये पीक ईयर्स होते हैं, तो इसमें प्लेयर भाग भी सकता है, एजिलिटी भी होती है, सब कुछ है. तो अभी it's a good mixture of 30 years old and younger players. Not anyone is not, अगर मिलनर एक ऐसी चीज है जिसमें आप 35 पे हैं. लेकिन बारसा के अंदर इशू क्या था, अभी सुआरेज खेल रहा था, ठीक है, फिर मेसी आपके पास खेल रहा है, उसके बाद Please, आपके man. पास मिडफील्ड के अंदर Please, man. विडाल खेल रहा था. विडाल मतलब मैं उससे भी थोड़ा सा पीछे जी. जाता हूँ. विडाल खेल रहा था, फिर आपके पास राकेटिस खेल रहा था, फिर आपके पास बुस्केट्स खेल रहा था, फिर आपके पास पीके खेल रहा था, फिर आपके पास जॉर्डी अल्बा खेल रहा था. तो दैट्स टू मच. You need to have a fine balance. So I think Liverpool has the right balance. Obviously they have to think about के ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो अब लाए जाएं, जैसे केटा है, फिर इसी तरह और भी कोनाटे को लेके आए जोटा हैं को आप वो, देखिए. जोटा ऑब्वियसली. तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि एक दो साइनिंग करेंगे, दे विल बी गोइंग टू द राइट डायरेक्शन. और ऐसा ही करना चाहिए क्लब्स को. लेकिन बासा वाज अ मेस, ठीक है, वो तो एवरेज एज जब आपकी 31 से ऊपर हो या 30 से 32 से ऊपर हो, देन दैट्स नॉट गुड. That's not good enough. No, absolutely. The thing is that when Firmino wasn't working for us, he's also, I think, 30, 31 years old. So that time I thought that who is going to be the replacement? There is no way that I could even imagine that Diogo Jota will take that role. Even though that I'll not say that he is the false nine for Liverpool, but he is delivering. He is getting us the goals, which Firmino would like very unselfishly make the goals for Salah and Mane. So I think that there are a lot of changes, and that's what a team does. They'll have to improve. They'll have to change. They'll have to keep improving everything that is happening with the team. So it's a proper team. That is what Liverpool is. But we're talking about Barcelona here. And my next question is, Zavi का एक interview हुआ था अभी, like he was just saying there were news about it that he's going to go all out because obviously they have nothing to lose. ठीक है, knockout में आगे नहीं जा पाएंगे, but अभी भी कोई ज्यादा श्योर है नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे. पर इतना तो है कि अगर बार्सिलोना पूरा अटैकिंग मोड में खेलने वाला है, जो कि एक वरी वाली बात ये है कि 23 गोल्स आई थिंक बार्सा ने किए हैं ला लीगा में कुछ 15 गेम्स में, व्हिच इज आई थिंक देयर लोएस्ट सिंस 2003 एंड 4, जिसमें उन्होंने 19 गोल्स करे थे. तो अगर अटैकिंग भी खिलाना है, दैट इज द फिलॉसफी राइट नाउ टू गो अगेंस्ट बायर्न, बट हाउ विल यू डू दैट? मींस दैट इज द बिग क्वेश्चन. खिलाना है पर कैसे करेंगे? तो हु वांट्स टू टेक दिस? हु इज गोइंग टू बी द की प्लेयर हियर? यहाँ से what I have seen with Xavi is that उसकी midfield आउटपुट बहुत ज्यादा होना चाहिए. मिडफील्डर्स को वो इंटीरियर्स बना के खिलवाना चाहता है. एंड अल साथ पे ही गॉट द बेनिफिट बिकॉज उसके पास नेचुरल विंगर्स थे. दे यूज्ड टू स्प्रेड द पिच. मिडफील्डर्स यूज्ड टू ऑक्यूपाई दैट सेंट्रल हाफ स्पेसेस जो कि ऑपोजिशन के डिफेंडर्स छोड़ते थे. एंड वहां से दे यूज्ड टू ओवरलैप. फुल बैक स्टक इन करके मिडफील्ड में सपोर्ट बना देते थे. तो देयर यूज्ड टू बी अ न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिड ऑफ द पार्क एंड देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ मूवमेंट. तो वहां पे इट वाजंट सर्टेन कि आपका ये प्लेयर स्कोर करेगा, ये प्लेयर स्कोर करेगा. एनीबडी कुड गो आउट एंड स्कोर बिकॉज इतना अच्छा मूवमेंट होता था, इतनी अच्छी कोहेसिवनेस थी टीम में कि प्लेयर्स weren't fulfilling the roles. They were just flowing in spaces. जो बंदा उस स्पेस में आया वो स्कोर कर दिया. Look, what is a position? क्या क्या है स्ट्राइकर, क्या है एक नंबर 8, क्या है एक सेंटर फॉरवर्ड? कुछ नहीं है. That player at the right time at that place becomes a striker. अगर Cesc Fabregas used to play as a CM, but he was played as a false nine and he was played up top. Pep Guardiola said this. The फर्क नहीं पड़ता. I would play Cesc Fabregas up top as a striker because if you are up top over there, you are a center forward. You would score those goals. So how to do it? That's a big question at Barca because that is too much of a task, too much of an ask from these players to actually go on and deliver it. But
How is the approach of Barca going to be? This is how it's going to be. We will be seeing these midfielders getting more involved in the game. जैसे कि पहले बारसा में हुआ करता था, you used to see midfielders often popping up shots and scoring the goals. Iniesta, Xavi Hmm. arriving in those positions and with a cutback, Messi का connection, Jordi Alba का touch, Hmm. Busquets के long pass, कुछ भी. They used to be over there at the place, and we have seen the midfielders at Barca score. Messi used to be in the limelight because that guy used to score like 100 goal per season, but midfielders also used to contribute. तो वही हमें देखना होगा कैसे करना है. We have to make use of our midfielders right now because attack पे Hmm. हमारे पास कमी है. You cannot blame and pin everything on Dembele and Memphis Depay. We have to see De Hmm. Jong get forward, Gavi and Nico get forward, try to take a few shots, and Gavi को instruct किया है जावी ने. पिछले मैचेस में हमने ये देखा भी उसका रिजल्ट, that get into that place, try to shoot, and Gavi was trying to do that. Hmm. So that's हम्म। one way in which I feel it would help. तो ईशान भाई ने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि गोल्स नहीं निकल रहे, तो Hmm. दैट्स अ प्रॉब्लम, और ये स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क, और ये बहुत क्विक, मतलब क्विकली आप फिक्स नहीं कर सकते इसको, इट विल टेक टाइम, और इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क गोइंग इनटू दैट गेम। गोल नहीं निकल रहे, वी आर ट्राइंग वी आर Hmm. ट्राइंग वी आर ट्राइंग, लेकिन नहीं निकल रहे। वी आर क्रिएटिंग चांसेस, ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे, वी आर एक्चुअली Hmm. क्रिएटिंग वेरी गुड क्लियर कट चांसेस। Yeah. मिडफील्ड Hmm. कहीं ना कहीं वो काम कर रही है। हाँ, वो बात है कि मिडफील्ड उतने ज्यादा शॉट्स नहीं ले रही, विच शुड बी द Hmm. केस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू टेक हाफ अपॉर्चुनिटीज भी आप लें Hmm. जब आपके पास स्पेस है मिडफील्ड के अंदर। लेकिन डिपे एंड डेम्बले, दे हैव टू डू इट, और डेम्बले के पास इज द अपॉर्चुनिटी फॉर डेम्बले। मतलब वो बंदा 25 से 30% गेम्स खेला है बारसा के लिए। अब थोड़ी सी रैंट होने Hmm. लगी है डेम्बले के ऊपर एज ऑलवेज, तो और उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए नया। द लीस्ट ही कैन डू इज जस्ट लाइक extend the contract, right? You don't want to basically go into that direction. Obviously आपको कितने क्लब्स जो हैं वो ऑफर कर रहे होंगे, but you have Hmm. not given anything to Barcelona so far. तो Hmm. आपको चुप करके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहिए। Even if you want to leave, you can leave, but this is the least you can do for FC Barcelona right now, Hmm. to extend the contract, and he is not extending the contract. और ये गेम है उसके लिए which he has to make the difference. We paid more than 100 million euros and we got nothing from Dembele so far. मुझे Hmm. अक्सर लोग कहते हैं और मैं भी देखता हूँ कि यार डेम्बले अभी जितने भी मैचेस के अंदर वो बेंच से ऊपर आया, he has provided that spark, बट वो स्पार्क वो पिछले 3-4 साल से प्रोवाइड कर रहा है। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, कोई बड़ा Hmm. मैच उसने जिताया नहीं अभी तक। तो दिस इज द टाइम दैट डेम्बले हैज टू डू इट, otherwise we as a Barcelona fans have to move on from the potential side of the player, क्योंकि पोटेंशियल जितना मर्जी हो आपके पास, पोग्बा इज गेटिंग 30 नाउ, कितना पोटेंशियल, कितनी उसके ऊपर Hmm. एंटीसिपेशन थी, बट हिज करियर इज Hmm. ऑलमोस्ट ओवर आफ्टर 2-3-4 Hmm. years। तो अब वो कब रीच करेगा पोटेंशियल? तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हार्ड वर्किंग प्लेयर्स ज्यादा रीच करते हैं, ज्यादा ज्यादा अचीव करते हैं, रादर देन जो पोटेंशियली Hmm. प्लेयर होते हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। तो अगेन Hmm. रैंट ऑन डेम्बले लीस्ट, उससे एक्सपेक्टेशन मेरी ज्यादा रहेंगी, और इफ ही वांट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ही शुड बी फिनिशिंग ऑफ द चांसेस अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। सीन यहाँ पे एक है, Okay. मैं जस्ट एक ऐड करना चाहूंगा कुछ चीजें। सॉरी, Yeah. उस्मान भाई ने स्पार्क की बात की ना, स्पार्क से मुझे चीज याद आया कि ना स्पार्क से बहुत बेटर है ना एक कंसिस्टेंट फ्लेम ज्वाला, जो वो आप कोयला जलाते हो ना, दैट वुड बी बेटर। तो एक डिसेंट एवरेज परफॉर्मिंग विंगर मुझे ज्यादा पसंद आएगा देन अ वेरी स्पार्क, एक ब्लिस्टरिंग एक्सप्लोसिव प्लेयर। जिशान भाई पेड्रो का रिमेंबर एग्जांपल पेड्रो, दूंगा यहाँ पे मैं। मैं यही कहने लगा था एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली Hmm. वही बात है उस्मान भाई। वी सी पेड्रो कोई ऐसा बहुत ज्यादा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं था, एक बहुत ज्यादा उसके में कोई अलग विंटेज स्वाव नहीं था, ही वाजंट द वर्ल्ड्स बेस्ट Hmm. प्लेयर ओवर देयर, बट उसकी वर्क रेट, उसकी टेनासिटी, एवरी सिंगल गेम वी थॉट कि यार ओके पेड्रो इज देयर इन द लाइनअप, हमें विड्थ की चिंता नहीं है, हमें पेस की चिंता नहीं है, हमें ये भी Hmm. चिंता नहीं है कि पेड्रो अगर हाफ बॉल गिरी है, पेड्रो वुड गो ऑन एंड ट्राई टू हेड दैट बॉल इवन दो देयर इज अ बूट कमिंग फ्लाइंग इन ऑन हिज हेड, Hmm. ही वुड गो एंड डू दैट। And Dembele won't even approach that because चोट लग जाएगी ना भाई, फिर सैनिटास, आप फिर हॉस्पिटल चार्जेस। तो ये बहुत सही बात बोली यहाँ पे उस्मान भाई ने कि the least that Dembele can do is can sign that Yeah. contract and you can just get a hell out of here. See, Gini Van Aldum did that for Liverpool. He was available for us day in, day out. He was there. But now thinking about Naby Keita, now we expect him, whenever he comes on the mat, there is that spark. We see that creativity. We see that spark, like we were talking about that spark. It is there in Naby Keita. But
when is he available? When we need him, तो उस time पे तो we have to use like we go for Curtis Jones और कोई ना कोई और available हो हमारे लिए. But जब चाहिए तब तो नहीं होता है ना. तो that is why I feel that Naby Keita का ठीक रहना अभी बहुत ज़रूरी है. हार्वी एलियट आने से पहले ताकि वो परफॉर्म कर पाए. Yeah, and imagine Like Naby Keita when he is there and he has not played like even he has only played like 20 to 30% yeah, matches और आपको being a fan आपको पता चले कि Naby Keita does not want to extend the contract, he is asking for more money, so how would you feel? absolutely. And you have That paid is bullshit. 130 million Exactly. euros for that Ah, guy. yes. Even though Liverpool will never do Liverpool can never pay that much, but still, yeah, I understand. That is like so disheartening when it comes to it. So I want to ask you, this is the second last question here, that who has been the most disappointing signing that Barcelona has done? Just the player signing, not the manager, but the player signing that Barcelona has done, the most disappointing. डेम्बेले मैंने भी इतना ज्यादा बोला डेम्बेले के ऊपर आई कैन नॉट से एनी अदर प्लेयर लेकिन डेम्बेले मुझे ऐसा All लगता है right. कि आई मीन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साइनिंग बार्सा ने बुरी की है ग्रीजमैन वुड मतलब ग्रीजमैन कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी 100 मिलियन दी है एंड ही जस्ट वेंट Coutinho. आउट राइट देयर वाज नथिंग कुटिन्यो ऑब्वियसली लेकिन कुटिन्यो की एक ऐसी साइनिंग थी इट डिडंट वर्क आउट राइट बट Hmm. everyone wanted Coutinho at Barcelona everyone was Hmm. talking about कि Coutinho is a Barca player he will be there तो उसकी भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा था डेम्बले के अंदर अगेन वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल Hmm. बहुत ज्यादा था 3-4 साल में आप देखें किलियन एम्बापे कहां पे है इस टाइम और डेम्बले Hmm. कहां पे है तो पोटेंशियल वाइज आई वुड हैव टू से डेम्बले बट बहुत बुरी साइनिंग्स की है बारसा ने बहुत ज्यादा साइनिंग्स वर्क नहीं की बारसा के ऊपर Yeah. So Zisha, what do you think? The Yeah, worst signing ever? for me it's going to be Coutinho because इतनी expectation थी उस बंदे से that guy was supposed to be the next Hmm. Iniesta which I thought he'll never be definitely and I never thought of him to be the Hmm. Iniesta nobody can be but why I chose him because when we signed him he was at his peak एक ऐसे system में आना था जहाँ पे he was bound to Hmm. fit in over there, bound to play, bound to start deliver. It wasn't like we have to give him time to settle in. We have to finish him. We have to उसको तराशना नहीं Hmm. पड़ेगा हमें. We don't have to treat him right. He can just get on एक महीना डेढ़ महीना gel on the club and then start to perform like that. We signed Hmm. him for 160 million euros and अभी तक उसके हमें पैसे देने पड़ रहे हैं हराम खोर. Scene यही है कि we expected a lot from Coutinho and Hmm. thing is कि why I think according to me that's the worst signing because पहली बात we never utilized him in the best possible role and I think that is a bigger loss because if we had used him in a better role better position Hmm. you know he could have done better हम उसको RM खिला रहे हैं हम उसको left wing खिला रहे हैं that guy Hmm. is not comfortable playing over there Hmm. so and Dembele की जहाँ तक बात है, I absolutely get angry when I talk about Dembele because, like Usman Bhai said, that guy has done nothing. मतलब apart from those Hmm. Inter Milan goals, that Spurs का goal, मुझे वही याद आता है because I do not really understand what actually Dembele has done, but I so badly wanted him to perform at Barca because जब वो आया था, there was a huge potential कि Dembele could be one of the best players, and even Xavi said now कि when Dembele is fit Hmm. he can be the world's best player in that position. But क्या बताऊं मैं? And then you got to talk about the signing of Malcolm. You're gonna talk about the signing of Paulinho and ये सब तो भाई फिर भूल चलते ही जाओ रहेगा फिर वो बहुत बड़ी चलते रहेगा. लंबी लिस्ट हो जाएगी वन लास्ट कमेंट मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आई पिक डेम्बेले मेरी रीजन ये है कि कुटिन्यो वाज प्लेड आउट ऑफ पोजीशन राइट ग्रीजमैन वाज आल्सो प्लेड आउट ऑफ पोजीशन ये तीन बड़ी साइनिंग थी डेम्बेले वाज ऑलवेज प्लेड इन हिज पोजीशन तो उस पे भी Hmm. उसने मैक्सिमम पोटेंशियल जितना गेम्स खेली हैं उस पे भी मैक्सिमम पोटेंशियल रीच नहीं किया और अगेन इंजरी तो बहुत बड़ा एक रीजन है क्योंकि प्लेयर अवेलेबल ही नहीं है तो उसने ना इंप्रूव करना है ना परफॉर्म कर रहा है कुछ भी नहीं हो सकता फिर उसका Hmm. Absolutely. Let's hope अभी बाइन के अगेंस्ट वर्क कर जाए एंड इतना Let's जो अभी अच्छी बात है से कि लेके बान पे अभी कुटिन्यो नहीं है वरना वो भी आगे 2 गोल मारा होता. It's good. सही में हो सकता है कुछ हमारा नहीं पता व्हेन द लोनी टीम इज या हमारा लोनी वहां गया हमारे अगेंस्ट आके 2 गोल मार रहे हैं इज लाइक नहीं मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा अबे यार कर ले भाई कर कर ले ले यही कर ले यहाँ यही पे नहीं बच रहा है कर मिलेगा ले. हाँ, बस. Okay, let's end the video with predictions. So, what do you guys think is going to happen in the match? I will be very optimistic when I say I'm going for a draw.
Very optimistic. Okay. Very optimistic because I mean ground realities are you have to be realistic. Hmm. Optimism जो है being a Barca fan, that's why I'm going for a draw. लेकिन अगर realistically okay मैं बहुत ज्यादा realistic होके सोचूं then it is Hmm. Bayern Munich all the way. Hmm. All Best right. case scenario So, for me is Dynamo Kiev drawing against Benfica. Hail, Halla Visca Dynamo Kiev, Visca, Dynamo Visca Kiev, Dynamo Kiev GG, GGMU, GG, Dynamo Kiev, and जो भी जो भी बन whatever it सके is, अभी जो भी बन बनाएंगे सकते हैं रात में बैठ बना के नहीं रहे हैं. Forza Dynamo Kiev and You Never Walk Alone Dynamo Kiev. तो यही है कि आई थिंक ज्यादा लोग हाँ मैच ना बार्सा का नहीं देखने वाले हैं बट डायनामो कीव एंड बेनफिका का मैच देखने वाले हैं जस्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन दैट मैच क्योंकि absolutely. शायद एक्सपेक्टेशन जो बार्सा एंड बायर्न से है वो सिमिलर ही रहे बिकॉज इतना इमीडिएटली चेंज होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कुछ अलग ही हो गया ओवरनाइट की मेंटालिटी चल मॉन्स्टर्स टाइप्स कुछ बन गए दैट्स अनदर थिंग दैट्स लाइक फिर Draw तो for यार me. टॉक ऑफ द टाउन बन ही जाएगा टॉक ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा इफ Bayern like loses against Barcelona. So I think बहुत बड़ी चीज होएगी पता है वो. क्या यहाँ पे वी डिड दैट रेमोंटाडा अगले मैच में जाके हम यूवेंटस के अगेंस्ट बहुत गंदा हारते हैं क्या फायदा हुआ मतलब दैट्स द थिंग दैट्स वन थिंग I'm considerate about रेमोंटाडा करते हैं हम हम्म इतना बढ़िया वी गो ऑन एंड विन दैट 6-1 एंड माय दुनिया पागल हो हम्म. जाती है अर्थक्वेक आता है स्पेन में भी बिकॉज़ पीपल इतने जोर से ताली बजा देते हैं द थिंग इज कि we did that. We were beaten so badly by PSG, but then we showed that mentality, that we got that belief. We हम्म created history by making that comeback. All good, accepted. My favorite game, hands down. Okay. Next game against Juventus, हम जाते 3-0, we'll lose against them. So and home पे शायद we had a 0-0 draw. And people Cellini and Bonucci said कि या manager उस टाइम पे शायद Max Allegri था. He said कि Barca could have played for the next 3 days and they couldn't have scored a single goal. So दैट्स मॉकरी ये इतनी बेगंदी हम्म बेइज्जती है मैं क्या बताऊं एंड कांस्टेंट मलोलस का हेडर लिवरपूल पे दैट कॉर्नर टेकन क्विकली एंड दैट 8-2 एंड दैट एवरी सिंगल थिंग हैज लेड डाउन टू दैट वन फैक्टर if we defeat Bayern Munich if we go through I would हम्म want Barcelona to go all the way they just cannot get out of that round of 16 if it would be all for nothing मेरे हिसाब से it would be much wiser if we go into the Europa we'll have अपने लेवल के कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं लेट मी से विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल ओवर हियर एंड वी कैन एक्चुअली हैव अ चांस कि हम वो टाइटल में हम कुछ कर पाए इट्स नॉट सो बैड टू प्ले इन द यूरोपा और बिग टीम्स हैव प्लेड ओवर देयर तो गेट अ विन दैट्स वेरी गुड आई विल बी वेरी हैप्पी आई विल बी चीयरिंग 2 दिन तक मैं भाई मैं बाहर नाचूंगा पूरे रोड पे का है बट नेक्स्ट गेम में प्लीज वी गोटा सी better football. Next game, say Fati would be back. So we gotta see Barca जो round of 16 में खेले थोड़ा सा better football खेले. At least let's try to win first round जो हम home पे game खेले. हम्म. See, Better that side. is okay. Like what, like you're saying कि बाद में you need to finish that. You know, if they have started winning once against Bayern, अगर वो करते हैं, तो you want to like it should lead somewhere. At least डिसिप्लिन they should give everything in the game. वो होना चाहिए. But then I also feel कि यार अगर Bayern के against अभी जीतते हैं, don't you think that जो ठीक है बहुत टेम्परेरी खुशी है मैं बोलूंगी वो कि ठीक है टेम्परेरी रहता है वो वाले मोमेंट्स जो रहते हैं कि देखो हमने क्या किया एंड देन नेक्स्ट गेम में जाके एकदम लाइक कंसिस्टेंसी वो नहीं रहती है तो ऑब्वियसली बुरा लगता है बट डोंट यू लिव फॉर दोस 1 or 2 डे वाले मोमेंट्स एज वेल Barca fans live कि for यार title. We'll live for titles. We'll live for the wins. We'll live for that belief कि हाँ हम आगे consistency is the main key for Barcelona. We कंसिस्टेंसी इज द की definitely and we haven't seen that in a long time. भाई वो Ernesto Valverde का वो last time था जब we used जो title winning back to back season था हमारा उस point of time पे we used to play like shit but we used to win because we Ernesto Valverde made this team defensively very solid. हम बहुत कम goals खाते थे. We were very solid at the back. ठीक है Umtiti was balling. Ter Stegen was one of the best goalkeeper and Messi was the best player around. He used to score the goals. Ter Stegen used to stop the goals. Midfield में Iniesta, Busquets, and Rakitic used to do the job. तो that's what we want. One एक बान के अगेंस्ट यार ऐसे तो फिर लेस्टर वाला भी तो वही है ना यार कि उन्होंने एक वो चलो ठीक है टाइटल अलग हो गया टाइटल को नहीं कंपेयर करो यहाँ पे बट दैट शेरिफ वाली चीज आई डू नॉट वांट टू बी अनदर शेरिफ आई एम अ बार्सा फैन हम बार्सिलोना है उस शेरिफ ने वो मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड दैट्स ग्रेट दे कैन चेरिश इट फॉर द एंटायर हिस्ट्री आई डू नॉट वांट टू रिमेंबर दैट बार्सा डिफीटेड बायर्न म्यूनिख इन दिस पर्टिकुलर सीजन Obviously, it's the same thing. You remember that when Liverpool won the Champions League title, and it was AX versus Tottenham's match, and Tottenham made a comeback in that match. But nobody remembers. Means okay, you will think about it in a day or two if ever that fixture comes up again. But
they did not win the title. It's still Hmm. the trophyless Tottenham that you see. So that excitement definitely is there. You'll not sleep खत्म for हो गई 2 फिर nights, but वो खत्म हो yeah. जाती है। मतलब टॉटनम वो जो फाइनली win जीता, Ajax थी, थोड़े से हाँ, फैंस भी बढ़ गए होंगे टॉटनम के yeah. उस दौरान, लेकिन उसके बाद खत्म, फिर दे आर स्टक। Yeah. Nobody remembers their performance against Ajax. Everybody thinks about that performance against Liverpool in that Again, final it because was people say कि very भाई bad. क्या boring Hmm. performance था, one of the worst Yeah, finals they yeah, have yeah. seen. एक Premier League का Absolutely. average Tuesday night का game. डेफिनेटली Exactly. डेफिनेटली वही कंसिस्टेंसी था. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज Hmm. अगर कंसिस्टेंट नहीं है आप तो डिसिप्लिन, मैं वही बात कहूंगा कि डिसिप्लिन, आपका जो गेम प्ले है उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, और यू हैव टू रिमाइंड योर प्लेयर्स व्हाट यू आर, मतलब पेप गार्डियोला की एग्जांपल, क्लॉप की एग्जांपल इसमें बहुत अच्छी है। दे ऑलवेज रिमाइंडिंग देयर प्लेयर व्हाट इज द एंड गोल, इट्स नॉट अबाउट जस्ट टुडे, व्हाट इज द एंड गोल, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू अचीव इन द एंड, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगेन बारसा से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट अगेन अगर राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन मेरी है गेम प्ले से, कि गेम प्ले इंप्रूव होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो देखते हैं कि क्या होता है, बट बिग मैच, और हारो वेडनेसडे लेकिन को तमीज से देखेंगे हारो, सारे। मतलब राउंड हाँ 16 में बिल्कुल चलो मान लो बिल्कुल, लिवरपूल से भी खेल रहे हो तो हारो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव कोई नो इशू नहीं। प्रॉब्लम इन एब्सोल्युटली इफ आई गो आउट एंड लूज, कोई दिक्कत नहीं, बट जस्ट थोड़ा सा मतलब ठुकाओ मत यार, मतलब 5-0 मतलब 4-0 क्या होता है, शो come on, करो, वो इंटेंट शो फाइट। करो पूरे गेम में. हाँ। या एग्जैक्टली अभी एंड अभी तक जैसे शो डॉर्टमुंड ये नहीं करो. खेला ना बायर्न जैसे से। अटलांटा और विलेरियल का मैच, अटलांटा और विलेरियल के अगेंस्ट यूनाइटेड ने खेला है, अटलांटा एंड विलेरियल हारे, they would not be, मतलब they would be devastated, yes, not winning those games, but they cannot blame, you cannot say कि यार हमने poor खेला, we didn't deserve to lose, but Barcelona जितने matches हारते they deserve to lose, हाँ। and probably so with bigger margins, तो उस वाले 8-2 में ना it could have been 10, could have been 10, वो chances miss किए थे बहुत गंदी, वो तो हम सही है। ध्यान भी नहीं देते हैं। बेनिफिका वाला गेम जो अभी हमने 3-0 हारा अवे, it could also have been like 5-0, तो हम हारते हैं, हम बहुत गंदा हारते हैं, तो you shouldn't lose like that, let's try to lose in a better way. डॉर्टमुंड बायर्न एब्सोल्युटली. बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है कि Exactly. डॉर्टमुंड Yeah. गिव अ फाइट टू बायर्न, आई मीन, तो आप देख सकते हैं फाइट अगेन क्लोज मैच होना चाहिए, तो फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है अगर आप हार भी जाते हैं, तो इवन इफ यू आर इन द यूरोपा लीग इट्स ओके। Absolutely. Abhi, I'll just say that all the best to you both for your match. Let's see what happens. अगर बारसा ड्रॉ भी करती है ना, बेनफिका जीत जाती है, तो अभी खत्म। मेरे ख्याल में फिर भी खत्म है, क्योंकि मेरे ख्याल में गोल डिफरेंस मोर और लेस सेम रहेगा, और फिर वो होम के ऊपर जीते हुए अवे के ऊपर हारे नहीं थे वो, तो अगेन द बेस्ट बैट इज डायनामिक कीव, विस्कैल डायनामिक कीव। All the best to you guys. Let's see what happens. बाकी तो I Thank think you. सबसे इंटरेस्टिंग जो फिक्सचर रहने वाला है वो यही है. और तो बाकी thank you so much for coming to my channel. I really had so much fun talking to you about it, and I know बहुत late हो गया है, and thank you for taking the time out. It was really fun talking to you about this. Thank you All so much, right, it was फिर a कभी pleasure. करते हैं. It was a pleasure. Enjoyed it thoroughly. Yeah. All right, हार्ट bye bye. खोल Good करके बात night. कर पाया मैं यहाँ पे ना, दिल सही खोल बात के है। बात की, मतलब एकदम, मतलब क्या सही है, ठीक है, loved it, thank you so much for the invite. लोग कमेंट में A2 नहीं ना लिख रहे, तो थोड़ा सा हौसला है Yes, बात yes, करने yes. में। I'm sorry guys, I'm sorry, I came out strong, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है नहीं, ये प्यार है हमारा, पगले। Absolutely. Okay, guys. Good night. Take care. बाकी all the best. देखते हैं क्या होता है. All right. Bye bye.